Hi guys, welcome back to the channel. Today we are starting our Operate integration series. In this video I will explain why we need it, what problem it solves, and how can we implement it step by step. So stay with me and let's discuss everything in today's video. So first of all we have a Operate integration is actually is Operate integration is a process that help us to connect different part of our system. So user can access features smoothly without an issue. And why we need it? Basically project grow we face issues like slow responses, inconsistent data, and difficulty managing user related operation. So all the thing we have like integration help us to fix these changes by bringing everything together in a clean and efficient way. So we have a Uber Eats. This is a testing store we have Uber Eats food and grocery. So we are going for that Uber Eats official documentation. Okay, so you need to visit here https colon slash slash developer.uber.com. Okay, so here we have Uber Eats Marketplace API, and what can we build? Marketplace API overview, documentation guide, integration path, and stay updated. And before you start getting started in all the things we have, so we are reading out like a step by step. So what was the overview have? The Uber Eats Marketplace API enable partner to programmatically manage store, menu, and order on the Uber Eats platform, build integration that automate order processing, synchronize menu in real time, and managing store operation at scale. Okay, so that's a way we can programmatically uh, all the thing we can automate thing we can integrate in our store like menus, orders, platform. If suppose we have a multiple store, so we can build it easy way. So we have a suppose what can we build? POS integration we have like a connect your POS system to automatically synchronize menu. Suppose you have a store and you have a need to integrate your POS product in your Uber Eats, so you need to sync menu you have, inject order we have, eliminate manual process. Okay, this is the most common and valuable integration path. Second one, we have a menu management system synchronization way across platform with real-time update, pricing, availability, and new items for the menu section. And order management system, we have a automate order workflow from notification to fulfillment with a webhook and API endpoint. Include support for BYOC. It means bring your own courier delivery management. So in that case, BYOC, you have a two delivery management. If you can go through on your own delivery, you can go that way. If you can take care Uber it handle your delivery, so you don't need to go for that way like a BYOC way. Okay. So after that we have a multi-location management, scale operation across hundred of thousand restaurant location with enterprise grade API. Okay, we have a thousand of restaurant for the multiple locations, so easy way to track down and all the thing like a synchronized way. So we have a next feature, we have a promotional campaign management, create, manage, and track promotion campaign, so drive customer engagement and sales. So basically this module is help us for the promotion things for our menu, so go that way. If we need to implement the discount and all the part, so we can implementing using the promotion. And coming for the marketplace API, Uber Eats providers like integration, configuration, menu we have, store we have, order we have, promotion we have, and reporting. All the thing we have what was the purpose we have integration configuration for the purpose like a start onboarding and setup. And key use cases we have a connect app to merchant location and manage integration. Coming for the menu, we can already discuss menu and item management, sync menu update and all the part. Store we have a store operation, we need to set a store hour, manage online store status and all the thing we need to configure what was the location we have, what was the name we have for the store. So all the information we can update for our store repairs thing. And coming for that next API part a order.
accept, deny order, track fulfillment, handle cancellation, BYOC delivery management. All the information we are related to order, we can go that way. Promotion we had already discussed, like create campaign, manage offer, all the part managing here. And reporting, if we need to report something like a transaction report and performance metrics something, so we can using that kind of API. So for the next step, overhead providers like a documentation guide. Our comprehensive guide library cover every aspect of integration development. So in that way we have a like a core API and advanced feature. Core we have a like a at getting started, complete setup and development workflow, auth 2.0 implementation and scope, and API specification like all the thing we have like a webhook part, menu, order and store. And advanced feature we have like this kind of live part, order state part and item customization. So we can cover up for the next videos for this part, like getting started, how can we integrate our store in our Uber Eats application. Okay, for the next video we are complete that part, and after that we can coming for that part, like how can we create a token in the scope part. So integration path, it takes like Uber Eats give us like some particular time period, like a full POS integration takes 4 to 8 weeks. Complete automation with real-time sync, order injection, promotional campaign, BYOC delivery management, and comprehensive workflow management. Meet all the production quality standard. If you are going for your store to production, so all the thing you need to verify first and go for that. For the reporting integration, it takes 2 to 4 weeks, like that. You can read out all the things here. And you need to check like we have like a staying updated. The Uber Eats Marketplace API are actively developed with regular update and for the new feature. Basically Uber Eats update like for our own API and sometimes. Okay, so if you need to change what was the changes here coming, what was the versions we have. So we have a two-way. You can click here like a API change log and click here as well. So suppose I'm just click here API change log. So like a 2025 10th of month and 22 of date. This is the order API adding pickup instruction. These are the changes like a endpoint affected previous version accept order. It may be some keys are adding for the accept order response from the order. So like all the things like we are check here like what was the new things are coming for the like accept order for the previous request is not available this key, but for the new feature we have. Based on the user experience, Uber Eats working on that part and go that way. So in the future like a multiple update are coming, so always go for that documentation first and go that way. And all the thing, this is the overview part. Okay, and we and talk about like integration maintenance. We have like monitor the change log, the new feature that can enhance your integration, test version we have before production development. This is the important point, test version update in your staging environment. Before go to production, you need to test all the APIs in your own end and then send one email to Uber Eats team. So this is our like a testing store. So we are test all the API and all the thing working smoothly and working fine. So please go on the production. So Uber Eats team is review your API and all the thing is everything's fine and response time also fine. So Uber Eats go for the production for the next step. But before you need to test all the API and all the part using the test store. And before you start, review requirement, understand versioning and setup development. Create your developer account and review authentication. Read about VI API versioning and quality and performance standard. For production requirement, 99% of injection success rate required. Basically Uber Eats providers like that. And API versioning, it may be two types. We are just check. Okay, right now is giving like a 404. Maybe we are not able to access that one, but I'm just telling you like a 1.0 is the latest version for the Uber Eats API. So every time you are go for the API integration, go for the 1.0. This is the latest version.
And for the next video we are create the developer account, okay, and send one email to Uber Eats team, so get the scope and all the part. And getting started feature, we have ready to build a production quality integration. Getting started, this is the same thing: developer account setup, configuration, test or provisioning, authentication, end-to-end integration, production validation requirement. So this is the basic overview for the Uber Eats. Okay, so we can go for the next video. Okay, like how can we set up our developer account and all the thing. Okay, so please make sure you can review that documentation first. Okay, and understand that way. Now I'm already explaining on the thing here. So if you like it, so like this video, don't forget to like and subscribe. If you have any question or enjoy this content, leave a comment below. Your feedback basically help me to create more videos for you. Okay, so next video we are create developer account from Uber Eats and go for the that way. Okay, thank you, bye bye. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लफी कोडर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऊबर इट इंटीग्रेशन, जे कि टेस्टिंग स्टोर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहुंच जाते हैं अपने डेवलपर डैशबोर्ड पे, सॉरी ऊबर इट की डॉक्यूमेंटेशन पे, developer.uber.com। दिस इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन URL एंड स्टार्ट करते हैं सैंडबॉक्स एंड टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है द ईट्स मार्केटप्लेस एपीआई सैंडबॉक्स यूजेस डेडिकेटेड टेस्टिंग डोमेन। जो इनका टेस्टिंग डोमेन है वो सैंडबॉक्स अकाउंट है। प्रोडक्शन हमारा जब आपकी सारी पेट वगैरह टेस्ट हो जाती है ना, देन हम उसके लिए प्रोडक्शन अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो क्या क्या उसके लिए हमें नीड पड़ेगी टेस्टिंग अकाउंट के लिए, वो हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। टेस्टिंग अकाउंट जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए एपीआई कॉल का यूआरएल रहेगा हमारा, ये रहेगा जब भी कोई एपीआई कॉल करते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए हमारा यूआरएल ये रहेगा, https sandbox login over.com। एंड स्कोप्स का क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली ग्रांटेड फॉर सैंडबॉक्स डोमेन ओनली। ओके, जब भी हम टेस्टिंग स्टोर बनाते हैं ना तो स्कोप का क्या है वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाते हैं, बट प्रोडक्शन के केस में क्या है, उसके लिए आपको मैनुअल अप्रूव कराना पड़ता है। इट मीन्स आपको मेल करना पड़ेगा उबर टीम को स्कोप अप्रूवल के लिए। मैंने पिछली वीडियो में स्कोप का पार्ट मिस कर दिया था, इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। सो मैं भी ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन में होगा, दिस वन। जब भी हम कभी भी कोई टोकन क्रिएट करते हैं तो क्या होते हैं, जैसे its.store ये सारे के सारे हमारे स्कोप है। इट मीन्स अगर आपको कोई भी टोकन क्रिएट करना है और उसका ग्रांट टाइप आप यहाँ पे चेक कर लो, इसका क्या है, क्लाइंट क्रेडेंशियल। जो हम हमारे डेवलपर डैशबोर्ड में हम देखेंगे ना, तो वहाँ पे हमें ग्रांट टाइप और स्कोप रहेगा। अभी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, जब आपको टेस्टिंग स्टोर क्रिएट हो जाएगा ना तो ये सारे के सारे स्कोप अप्रूव ऑलरेडी वहाँ पे विजिबल होंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन वीडियो जो कि हम अभी देख लेते हैं। सिंपल सी फंडा ये है कि स्कोप का काम ये है, अगर आपको कोई टोकन क्रिएट करना है, किसके लिए क्रिएट करना है, स्टोर के लिए करना है तो ये चलेगा। किसी ऑर्डर से रिलेटेड समथिंग है तो ये चलेगा, और किसी रिपोर्टिंग से रिलेटेड है तो ये चलेगा, लाइक दैट। चलते हैं फिर अगेन अपने ठीक है। अब हम कैसे अपना टेस्टिंग स्टोर क्रिएट करते हैं, देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलपर डैशबोर्ड पे कर जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ईट्स मार्केट प्लेस। जो ये स्क्रीन है ना, ये हमारी डेवलपर डैशबोर्ड स्क्रीन है। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें हमें ईट्स मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन भी है, जिसमें हमें टेस्टिंग और प्रोडक्शन दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम टेस्टिंग करते हैं ना तो टेस्टिंग करके नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास जितने भी स्कोप रहेंगे ना, हमें मैनुअल अप्रूवल की नीड नहीं है, जो कि ऑटोमेटिक अप्रूव मिल जाएंगे। बट प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें मैनुअल का केस रहेगा, सिनेरियो। तो उस केस में हमें उबर ईट्स से कनेक्ट करना पड़ेगा टीम से। देखो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर, व्हाट हैपन नेक्स्ट, स्कोप आर ऑटोमेटिकली ग्रांटेड फॉर सैंडबॉक्स डोमेन ओनली। ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएंगे सैंडबॉक्स के लिए। और एपीआई कॉल क्या करना पड़ेगा आपको, लाइक दैट, इस तरीके से आपको कॉल करना पड़ेगा, टेस्ट एपीआई डॉट कॉम समथिंग।
अगर आपको मैनुअल करना है तो इंटीग्रेशन टेक सपोर्ट टीम है, उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो हम टोकन कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्या करना है, हमें ऑलवेज टेस्टिंग स्टोर के लिए सैंडबॉक्स लॉगिन uber.com इन्होंने किया हुआ है। जैसे जब भी हम अपना अपना एक सेकेंड, हाँ, अपना वो अकाउंट क्रिएट करते हैं डेवलपर डैशबोर्ड का, तो वहाँ पे हमें क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट मिलता है। सॉरी, मैं डैशबोर्ड थोड़ा जूम स्क्रीन हो गया तो मैं डैशबोर्ड देख रहा हूँ। जब भी अब यहाँ पे ना डैशबोर्ड मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, अगर आप यहाँ पे लॉगिन करोगे ना साइन अप करके, तो आपको भी इस तरीके का शो होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ कि कैसे हमारी स्क्रीन विजिबल होती है, कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग स्टोर क्रिएट करते हैं। वो सारा सिनेरियो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, बट अभी ये ओवरव्यू है तो इसमें देख लेते हैं। देखो हमें क्लाइंट आईडी मिल जाएगा, क्लाइंट सीक्रेट मिल जाएगा, ग्रांट टाइप जो आपको मैंने स्कोप वाले सिनेरियो में दिखाया, और स्कोप देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ ईट्स डॉट ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर के लिए टोकन क्रिएट कर रहा है। और सैंडबॉक्स लॉगिन uber.com, ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इसका। और जो उसका रिस्पॉन्स आएगा जब टोकन क्रिएट होता है, एक्सेस टोकन मिलता है हमको, टोकन टाइप मिलता है, एक्सपायरी मिलता है, इट मीन्स 30 डेज की वैलिडिटी रहती है, और स्कोप मिलता है कि किस स्कोप के लिए आपने क्रिएट किया था। अगर आपको टेस्टिंग स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा तो आपको लाइक दैट टेस्ट uber.com डिलीवरी ऑर्डर ऑर्डर आईडी, ये इस तरीके से मैंने बताया हुआ है। और आइडेंटिफिकेशन टाइप कि आपका चेक करना है कि जो एप्लीकेशन क्रिएट हुई है वो आपकी टेस्टिंग है प्रोडक्शन, तो वहाँ पे उनका एक येलो का मार्क आता है कि वो टेस्टिंग है या फिर प्रोडक्शन है। सारी इन्फॉर्मेशन एपीआई शूट कौन सा है, कब क्रिएट हुआ है, क्या अपडेट हुआ है, सारी चीज़ें आपके डेवलपर डैशबोर्ड में मिलता है। और कॉम्प्रिहेंसिव एपीआई टेस्टिंग, टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए हम बाद में कवर करेंगे। हाँ, ये देख लेते हैं वेबबुक टेस्टिंग। चलो ये भी वेबबुक टेस्टिंग भी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे वेबबुक के भी सिनेरियो बनते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी हम सैंडबॉक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं, उसके बाद हम ये वेबबुक वाली पार्ट और अदर एपीआई टेस्टिंग वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। ओके, एंड थैंक यू, दैट्स इट, बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लफी कोडर। आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे अपना टेस्टिंग स्टोर क्रिएट करते हैं और उसके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। ठीक है, और अगर टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी डेवलपर uber.com वेबसाइट पर हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ इसलिए यहाँ पे डैशबोर्ड शो हो रहा है। आपको यहाँ पे लॉगिन या साइन अप आ रहा होगा, तो आपको सिंपली साइन अप करके लॉगिन कर लेना। जैसे आप कर लेते हो तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो तो आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी, आपको ये शो नहीं हो रहा होगा। मैं एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ, आपको यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन शो हो रहा होगा। आपको क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो हमें टेस्टिंग स्टोर बनाना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आते हैं, देखो बाय डिफॉल्ट एपीआई शूट आता है, नेक्स्ट टॉप हमारा ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन हमारा एप्लीकेशन, चौथा हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ हमारे पास सेलेक्ट एंड एपीआई शूट है, जिसमें हमें ईट्स मार्केट प्लेस स्टार्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें कौन सा स्टोर क्रिएट करना है, टेस्टिंग या प्रोडक्शन, हमें करनी है टेस्टिंग। तो जैसे हम टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अगर आपकी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने जैसे मेरी अभी दिख रही थी ना टेस्टिंग वाली, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, बट मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे न्यू बना लेता हूँ। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्लफी कोड, आप भी अपने हिसाब से बना लेना। और ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, मैं जैसे डाल देता हूँ sk817@gmail.com। ठीक है, ओके, अभी ये हुआ नहीं। ठीक है, आपको ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस डाला था, अब आप यहाँ पे लिंक ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन लिंक करते हो, आपको सेटअप ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉपअप आ गया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही वो क्रिएट होती है, देखो ईट्स मार्केट प्लेस था, ऑर्गेनाइजेशन पे ब्लफी कोडर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, मैं एप्लीकेशन बनानी है। मेरी एप्लीकेशन का नाम मैं रख देता हूँ ब्लफी, ब्लफी नहीं, डिफरेंट रखते हैं, जैसे
ब्लफी वन, ठीक है, ब्लफी वन रख देता हूँ, ब्लफी वन ऐप, ब्लफी वन, ओके। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डाल देना, मैं यहाँ डाल देता हूँ कुछ ब्लफी ब्लफी कर। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, क्रिएट कर देना। जैसे ही आप इसको क्रिएट करते हो, ठीक है, आपका देखो, आपका एपीआई शो डेट मार्केट प्लेस है, ऑर्गेनाइजेशन आपकी ब्लफी कोडर है, और एप्लीकेशन का नाम है ब्लफी वन। इसके बाद आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है कि आपको लीगल एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। आपको सिंपली ओपन एप्लीकेशन कर देना। जैसे ही आप एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो, तो आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास एप्लीकेशन क्रिएटेड हमने कर लिया। देखो यहाँ पे ब्लफी वन हमारी एप्लीकेशन का नेम था, कौन सा मोड है, टेस्टिंग ऐप नाम है। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन लिंक्ड है, तो हमारी लिंक्ड है ऑलरेडी, जो कि हमारी ब्लफी कोडर है। लीगल एग्रीमेंट हमें साइन करना है, अभी इस पे हम करते हैं। सैंडबॉक्स अकाउंट्स ग्रांटेड, इंटीग्रेशन वेरिफिकेशन रिक्वेस्टेड, और ये सारे हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स हैं। अभी देखते हैं, वन बाय वन को कंप्लीट करते हैं। देखो ये ब्लफी वन हमारा क्या है, ये एप्लीकेशन का नेम है। एप्लीकेशन आईडी हमारी क्लाइंट आईडी है, ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, आप न्यू क्लाइंट भी बना सकते हो। और देखो आपका जो टोकन रहेगा उसमें टाइम पीरियड भी दे रखा है इन्होंने कि वो 13 डेज के लिए वैलिड रहेगा। आपको कितने तक करना है, मैक्सिमम 30 डेज है, ठीक है। और हमारे पास रिडायरेक्ट यूआरएल है, पॉलिसी यूआरएल है, प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल है, एंड वेबबुक मैनेज करने के लिए दिया हुआ है उन्होंने, पब्लिक डिटेल के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए। तो वन बाय वन इन्हें फिल कर लेते हैं। तो आपको जैसे ये स्क्रीन आती है ना, तो पहले हम एग्रीमेंट डन कर लेते हैं। जनरेट एग्रीमेंट, थोड़ी लॉन्ग वीडियो है क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, तो कोई भी स्टेप मिस मत करना, ये तो ये थोड़ा टाइम लेगा। योर एग्रीमेंट इज बीइंग जनरेटेड, प्लीज चेक बैक इनटू 5 मिनट। ये जल्दी हो जाता है, 5 मिनट दिखाता है। जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ, जब तक ये हो रहा है, वेबबुक पे चलते हैं। देखो यहाँ पे आप अपना वेबबुक का यूआरएल डाल सकते हो, अगर आपके कोई ऑर्डर्स आते हैं तो उनको चेक करना है, तो वेबबुक के डाल देगा, हम टेस्टिंग वेबबुक यूआरएल ले लेते हैं, ठीक है, वेबबुक यूआरएल्स। तो एक वेबसाइट है वेबबुक डॉट साइट, आप यहाँ से वेबबुक के लिए यूआरएल ले सकते हो। अगर आपके पास कोई यूआरएल है वो डाल सकते हो, बट मैं टेस्टिंग के लिए ये यूआरएल यूज करूंगा अभी, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐड वेबबुक पे क्लिक करना है, प्राइमरी वेबबुक पे क्लिक करना है, एंड अपना वेबबुक यूआरएल बेसिक करना हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं, वरना साइनिंग की डालना है तो साइनिंग की डाल सकते हो, वरना कैंसिल करते हैं। मैं करता हूँ, मैं उनको कुछ नहीं डाला, मैं सिंपली डायरेक्टली ये करके मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। टू अननोन वैलिड वेबबुक ऑथेंटिकेशन टाइप, ओके, बट हमने ऑथेंटिकेशन टाइप हमें रखना पड़ेगा। मैं ऑथेंटिकेशन टाइप रखूँगा 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है, ये मेरा ऑथेंटिकेशन टाइप। वेबबुक क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आप देखोगे हमारा वेबबुक के लिए क्रिएट हो चुका है, जिसमें हमारा और टाइप बेसिक है, हमारा साइनिंग की हमारा क्या है जो हमने डाला था, सेकेंडरी साइनिंग की आप डाल सकते हो। आपको कभी भी चेंज करना है वेबबुक पे आके चेंज कर सकते हो। तो दोबारा सेटअप पे चलते हैं, वे एग्रीमेंट पे आते हैं। ओके देखो हमारा वो एग्रीमेंट आ चुका है। अगेन क्या करना है, व्यू एग्रीमेंट पे आना है। व्यू एग्रीमेंट पे आके यहाँ पे एक डॉक साइन करना होता है हमें, चाहे वो टेस्टिंग हो चाहे प्रोडक्शन। तो डरने की बात नहीं, आप कुछ भी फिल आउट कर सकते हो इसमें, क्योंकि मे बी ये ट्रैक करते हैं कि हाँ क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी। तो आपको कंटिन्यू कर लेना है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना है इस पार्ट को ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये। तो मैं इफेक्टिव डेट में डाल देता हूँ आज की डेट, 30 दिसंबर। फर्स्ट नेम में डाल देता हूँ मैं अपना नेम फ्लफी, एड्रेस में भी सेम डाल देता हूँ, आईडीज में भी कुछ सेम डाल देता हूँ हर जगह, ओके। तो ईमेल एड्रेस भी सेम डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ, सब मैं अपना वो डाल देता हूँ। इस पर कर लेते हैं नेक्स्ट, ओके, हमें साइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इन्होंने ईमेल एड्रेस ऑलरेडी ले लिया, एक्सेप्ट एंड साइन, सिग्नेचर सेम, फिल इन कर दिया, ब्लफी ब्लफी, टाइटल भी हमारा ओके। यहाँ पे हमें डेट सेलेक्ट करनी है, तो हमने 30 तारीख ले लिया। अब यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आएगा आपको टॉप पे,
तो हमारा एग्रीमेंट भी साइन हो गया 2 मिनट में। ओके, अब ये बोल रहा है वी आर वेरीफाइंग योर एग्रीमेंट, प्लीज चेक बैक इन 30 मिनट, बट ये भी हो जाएगा। 30 मिनट बोल रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए चलते हैं। जब तक यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी आप ये एग्रीमेंट वगैरह साइन करते हो ना, तो आपको अपना प्राइवेसी पॉलिसी ओरल डाल देना है, जो भी कुछ भी हो सकता है। http:// लोकल होस्ट डाल देता हूँ मैं तो /300। ओके, इंटर वैलिड। ओके, मे बी ये ले नहीं रहा है। ओके, सिक्योर इसको चाहिए, तो हम इसके लिए रिडायरेक्ट यूआरएल डाल देते हैं। इसमें मैं सेम डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और हम चलते हैं नीचे। और तो हम कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। सेव करना ना बोलो, क्योंकि सेव करना जरूरी है, तभी आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी। अब देखो हमारा वो सैंडबॉक्स अकाउंट क्रिएट हो चुका है, देखो ऑटोमेटिक। और यहाँ पे आ चुके हैं इंटीग्रेशन वेरिफिकेशन। वेरीफाई इंटीग्रेशन पे करते हैं, कंफर्म किया हमने, वेरीफाई इंटीग्रेशन भी हो गया। अब हम दोबारा सेव करते हैं, सेव का दोबारा आ रहा ऑप्शन। अब हम चलते हैं, अपना एग्रीमेंट हमारा साइन हो गया, देखो सक्सेसफुली। हमारा वेबबुक क्रिएट हो गया, ठीक है। एक्सेस टोकन पे चलते हैं। देखो एक्सेस टोकन हमारा यहाँ पे ईट्स पीओएस प्रोविजनिंग आ रहा है, चेक इन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑथ ग्रांटर 2 टाइप के हैं, ऑथ ऑथराइजेशन कोड, क्लाइंट क्रेडेंशियल। और यहाँ पे इसकी चेंज करने की नीड नहीं है, यहाँ पे होता है जब आप क्लाइंट क्रेडेंशियल करते हो ना। जो आपको मैंने स्कोप दिखाए थे, देखो टेस्टिंग स्टोर बनाया ना, हमारे पास सारे स्कोप ऑलरेडी अप्रूव है, तो उनको आप जैसे क्लिक करोगे उनके लिए स्कोप का टोकन क्रिएट हो जाएगा। मतलब आपको मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा, बट स्कोप अप्रूवल के लिए आपको कुछ भी प्रोसेस करना नहीं पड़ा टेस्टिंग स्टोर के लिए। चलते हैं, हमको सबको चेक कर लेना है वन बाय वन, ठीक है। दोबारा इसको चेंज कर लेते हैं, इस प्रोविजनिंग को देख लेते हैं, नीचे कुछ बोल रहे गए। टोकन जनरेशन इज नॉट सपोर्टेड फॉर सैंडबॉक्स एप्स, क्या बोल रहा है एप्स। ओके ओके, हमें ठीक है, एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। टोकन जनरेशन का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। वो इजी रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुके हैं। सो इसमें आप सेटअप कीजिए, और जो टोकन का पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ कैसे कैसे क्रिएट करते हैं टोकन, और पोस्टमैन के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं, हम दोनों कवर कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट। ओके, सो मैं आपको रिवर्ट करूँ अगर आपको कुछ भी इशू आता है या कोई हेल्प चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लफी कोडर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन टोकन कैसे क्रिएट करते हैं और क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, ठीक है। वो मैं सारा का सारा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। और पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, अपना टेस्टिंग स्टोर सेटअप किया था, जिसमें हमने ब्लफी वन नाम का एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था, जो कि टेस्टिंग ऐप था। इसमें हमने अपना सारा का सारा अपना जो भी हमें रिडायरेक्ट यूआरएल एंड पॉलिसी यूआरएल, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी थी, फिल आउट कर, वो हमने कंप्लीट किया था स्टेप। एंड कैसे एग्रीमेंट साइन किया था, एंड वेबबुक का भी सेटअप किया था पिछली वीडियो में। अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी हो तो पिछली वीडियो को आप रेफर कर सकते हो। सो इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कैसे एक एक्सेस टोकन हम क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करने में उनको हेल्प मिले, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, टेस्टिंग स्टोर के लिए हमारा जो ओऑथ ग्रांट टाइप था ना, ऑथराइजेशन कोड, ये टेस्टिंग स्टोर के लिए सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियली बता रखा है टोकन जनरेशन इज नॉट सपोर्टेड फॉर सैंडबॉक्स ऐप। तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ईट्स पीओएस प्रोविजनिंग का टोकन तो नहीं मिलेगा हमें। अगर हमें फिर क्रिएट करना पड़ेगा क्लाइंट क्रेडेंशियल का। क्लाइंट क्रेडेंशियल में क्या होता है, आपको कोई अपने स्टोर का स्टेटस चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है, रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप जब
आपका ग्रांट टाइप क्लाइंट क्रेडेंशियल रहेगा ना, तो आप क्रिएट कर सकते हो उस केस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन स्टेप पे आना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, उनको आप फॉलो करके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि एक कर्ल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे इन्होंने क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, ग्रांट टाइप दिया हुआ है, स्कोप्स दिए हुए हैं, एंड देन दिस इज द यूआरएल। चलिए इसको फॉलो करके, और ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा इस टाइप का। ठीक है, और इस टाइप का रिस्पॉन्स रहेगा। तो मैं कर्ल को नाउ कॉपी करते हुए मैं डायरेक्टली आपको पोस्टमैन ओपन करके दिखाता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको डायरेक्टली अपना पोस्टमैन ओपन कर लेना। ठीक है, मेरा ऑलरेडी ओपन है, मैंने एक न्यू ब्लैंक रिक्वेस्ट बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, न्यू रिक्वेस्ट जिसका मेथड अभी गेट गेट है, बट आपको ये पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे ना, गाइड के अंदर ऑथेंटिकेशन, देखो ये मेथड पोस्ट रहता है, तो हमेशा पोस्ट रहेगा ये। तो टेस्टिंग स्टोर के लिए हमें जाना, कॉपी करना पड़ेगा ये यूआरएल सैंडबॉक्स के लिए। कॉपी कर लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉडी में आके अपनी क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट सेंड करना पड़ेगा। देखो क्लाइंट आईडी ऑलरेडी आ रहा है, क्लाइंट सीक्रेट एंड ग्रांट टाइप डालना है आपको, एंड को स्कोप डालना है। ठीक है, बिकॉज ऑफ हमारे पास चार इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास क्लाइंट आईडी कहाँ से आएगी, क्लाइंट आईडी आपके पास आएगी यहाँ से, जो आपकी एप्लीकेशन आईडी है ना, यही हमारी क्लाइंट आईडी है। आपको ये कॉपी कर लेना सिंपल। देन आपको आना है क्लाइंट सीक्रेट पे, यहाँ पे, या अगर आपको न्यू क्लाइंट सीक्रेट क्रिएट करना है वो भी कर सकता हूँ मैं। डायरेक्टली इसी को कॉपी कर लेता हूँ। देन आपके पास आ गया ग्रांट टाइप। ग्रांट टाइप हमारा कहाँ से आता है, ग्रांट टाइप हमारा आता है यहाँ से, जो ओऑथ ग्रांट टाइप है ना। अब हम क्रिएट कर रहे हैं अपना टोकन ईट्स स्टोर और ईट्स ऑर्डर के लिए। ठीक है, क्योंकि हम इन सब स्कोप्स के लिए अपना टोकन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा ग्रांट टाइप आएगा क्लाइंट क्रेडेंशियल। तो ये हमारा ये रहेगा क्लाइंट क्रेडेंशियल्स। ठीक है, और स्कोप हमारा क्या है, ईट्स स्टोर डॉट ईट्स ऑर्डर। अगर मैं देखो मैं सारे के सारे डाल देता हूँ, तो ये जिसमें हमारे स्कोप्स क्या क्या है, रेस्टोरेंट डिलीवरी, स्टेटस, राइट, स्टोर, ऑर्डर, रिपोर्ट, समथिंग, ऑल सारे के सारे। अगर हम सारे रखता हूँ तो देखो, तो यहाँ पे ऑर्डर टोकन क्रिएट नहीं होगा। देखो स्कोप्स आर इनवैलिड बिकॉज ऑफ कुछ स्कोप क्या है, इनवैलिड है, जैसे स्कोप राइट एंड रीड, ये प्रमोशनल से रिलेटेड स्कोप रहते हैं। तो अगर आपको इसका टोकन क्रिएट करना है ना, तो ओवर एट से कनेक्ट करके देन आप कर सकते हो। स्कोप अप्रूवल आपको इसका मैनुअल लेना पड़ेगा ओवर एट की टीम से। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं वो प्रोसेस भी। उनको मेल करना पड़ेगा ओवर एट टीम को, तो वो प्रोसेस भी हम नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद हम उसको कवर कर लेंगे। अभी हम केवल क्रिएट कर लेते हैं स्टोर ईट्स डॉट स्टोर एंड ईट्स डॉट ऑर्डर। जब भी आप इसको स्कोप के अंदर डालो, तो मेक श्योर आपके पास इसमें बीच में गैप हो स्पेस का। देन जैसे हम सेंड करते हैं, देखिए यहाँ पे टोकन हमारा क्रिएट हो चुका है। एक्सेस टोकन, टोकन टाइप क्या है, एक्सपायरी क्या है, और स्कोप क्या है। स्कोप कौन कौन से स्कोप के लिए सपोर्टेड रहेगा, जैसे ईट्स डॉट स्टोर एंड ईट्स डॉट ऑर्डर, ये दो स्कोप्स के लिए वैलिड है, तो ये क्रिएट हो गया। अगर मैं चाहूँ सिंगल के लिए, तो सिंगल के लिए भी आप कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आपने सिंगल के लिए क्या है, और अगर आप कोई एपीआई ऑर्डर की एपीआई कॉल करते हो और इसको एक्सेस यूज करके ट्राई करते हो एपीआई यूज करने का, तो वो एक्सेस नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये जो टोकन है ओनली स्टोर की एपीआई के लिए ही वैलिड है। तो मेक श्योर जब भी आप क्रिएट करो, तो स्कोप प्रॉपरली पास करो और चेक करो कि हाँ कौन से स्कोप के लिए कौन सा टोकन वैलिड है। ठीक है, तो ये जो टोकन है ये हमारा टू स्कोप्स के लिए वैलिड है, जो कि ईट्स डॉट ऑर्डर एंड ईट्स डॉट स्टोर, ये टू एपीआई के लिए, टू टाइप्स की एपीआई के लिए वैलिड है। जिसके हम चलते हैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन पे, हमारे पास क्या है यहाँ पे, स्टोर एपीआई शोड, जैसे गेट स्टोर डिटेल, ये सारी की सारी एपीआई रिलेटेड स्टोर है, तो ये इसमें ये टोकन यूज हो जाएगा, जिसमें आप सारा का सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हो स्टोर का। ठीक है, एंड सेकंड वन है ऑर्डर का। ठीक है, ऑर्डर के लिए आपको के लिए भी सेम टोकन यूज हो जाएगा, जिसमें ऑर्डर, वेब हुक, लिस्ट ऑर्डर, एक्सेप्ट ऑर्डर, डिनाई ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, ये सारी के सारी एपीआई आप कॉल कर सकते हो सेम टोकन के साथ में। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट एक ऑथेंटिकेशन टोकन का वीडियो है। अगर आपको कुछ डाउट आता है या कुछ भी आपको इशू आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट,
थोड़ा सा, जिसमें हम वेबहुक गाइड और इस वेबहुक गाइड हम कवर करेंगे, और उसके बाद हम स्टोर इंटीग्रेशन गाइड और मेन्यू इंटीग्रेशन गाइड दोनों हम के लिए भी एक सेपरेट सेपरेट वीडियो मैं क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, ताकि हम चेक कर पाएँ कि स्टोर इंटीग्रेशन गाइड में हमें क्या फॉलो अप करना पड़ेगा, सेम केस फॉर द मेन्यू। ठीक है, ये हमारी ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड वीडियो थी। तो हमारा टोकन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, एंड देन हम कैसे इस टोकन को यूज़ करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ मेक श्योर यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। एंड अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे या कुछ भी आपको सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, ओके, बाय बाय, थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम टू द ब्लफी कोडर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऊबर एपीआई एक्सेस का ये इंट्रो वीडियो है, जिसमें हम ऊबर की एपीआई को कैसे एक्सेस करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक मेल आया हुआ था जिसमें ऊबर एपीआई एक्सेस के रिगार्डिंग डिस्कशन चल रहा है कि कैसे हम ऊबर एपीआई एक्सेस को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे सैंडबॉक्स एक्सेस को रिक्वायरमेंट क्या है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्या है, एक्सपेक्टेड अप्रूवल टाइमलाइन एंड अदर क्वेश्चंस। तो ये ईमेल आया है हमारे सौम्या जी की तरफ से, जिसमें मे बी वो किसी प्रोजेक्ट में सेटअप कर रहे हैं ऊबर इंटीग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सौम्या जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक काम करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे चैनल पे जाओ, यूट्यूब पे जाके ब्लफी कोडर सर्च करो। जैसे आप ब्लफी कोडर पे जाते हो ना, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी यहाँ पे, ऊबर इट इंटीग्रेशन। आप फर्स्टली अगर ऊबर इट इंटीग्रेशन से रिलेटेड सर्च कर रहे हो तो आपको सीरीज़ पे जाना है। एंड यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, 1 बाय 1 वीडियो डाली हुई है। अभी स्टार्ट ही की है मैंने सीरीज़, तो स्टेप बाय स्टेप इसे वॉच आउट करना। जहाँ पे हमने फर्स्ट वीडियो बनाई है इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें ये ऊबर इट मार्केट प्लेस की फुल गाइड है एपीआई इंटीग्रेशन से रिलेटेड। सेकंड वन सैंडबॉक्स और टेस्टिंग से रिलेटेड है। थर्ड वन प्रैक्टिकल वीडियो है। चौथा फोर्थ वीडियो हमारा टोकन से रिलेटेड है। ठीक है, अब चलते हैं आपका क्वेश्चन पे, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखते तो आपको आंसर मिल जाता। यहाँ पे लिखा हुआ है आपने स्टेप टू अप्लाई फॉर ऊबर एपीआई एक्सेस। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं। स्टेप टू अप्लाई फॉर ऊबर एपीआई एक्सेस, इट मीन्स हमें एपीआई एक्सेस का कैसे हम उसे कंप्लीट करेंगे, उसके फ्लो को। तो उसके फ्लो को हमें कंप्लीट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ। बाकी आपको डीप में जानना है तो आप ये वीडियो रीच आउट कर लेना। आपको सिंपली ऊबर ईट पे आना है। ऊबर ईट्स पे जैसे आते हो उसे लॉगिन कर लेना है। आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा। आपको अपना स्टोर क्रिएट कर लेना है। स्टोर क्रिएशन के लिए आपको ये फर्स्ट वीडियो है, सॉरी सेकंड वीडियो है, आप इसको देख सकते हो। ये इंट्रो है, ये प्रैक्टिकल वीडियो है। एंड देन जैसे ही आप इस अपनी एक टेस्टिंग एप्लीकेशन बना लेते हो, टोकन क्रिएट कर लेते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके डॉक्यूमेंटेशन पे आना है ऊबर ईट के। आपको आना है मार्केट प्लेस एपीआई रेफरेंस के अंदर। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा इंटीग्रेशन कॉन्फ़िगरेशन एपीआई शूट। जो ये सारा का सारा ये मार्केट प्लेस एपीआई रेफरेंस है ना, इसके अंदर आपको सारा का सारा एपीआई का जेसन मिलेगा। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है डाउनलोड एपीआई, ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन। जैसे ही आप इस डाउनलोड पे क्लिक करते हो ना, आपको एक जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे, लाइक दैट। सेम केस फॉर द स्टोर। जैसे आप स्टोर के लिए करते हो, स्टोर के लिए एक डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे। बट मेक श्योर जब भी आप इसे करोगे ना, तो आपको अपना स्कोप याद रखना है कि आप कौन से स्टोर स्कोप के लिए कर रहे हो। इस वाले स्कोप के लिए आपके पास स्टोर का स्कोप चलेगा। इस वाले के लिए आपका पीओएस प्रोविजनिंग का चलेगा। इनकी एपीआई के जेसन में मेंशन होता है। सेम कोइज फॉर द ऑर्डर। ऑर्डर के लिए ऑर्डर का चलेगा, ईट्स डॉट ऑर्डर स्कोप। एंड प्रमोशन के लिए हमारा मे बी स्टोर के ही चलता है, क्योंकि स्टोर से ही इंटरलिंक रहता है। एंड
मेन्यू के लिए हमारा चलेगा eats.store एज वेल, ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है देखो। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मेन्यू एपीआई शूट के लिए इन्होंने कोई जेसन दिया नहीं है, तो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आपका मेथड यहाँ लिख स्टार्टिंग में मेंशन होता है कि गेट मेथड रहेगा, ये आपका यूआरएल रहेगा, एंड उसका स्कोप आपका ये रहेगा, उसका एनकोडिंग हेडर ऐसा रहेगा, एंड पाथ पैरामीटर में आपकी स्टोर आईडी रहेगी, उसका क्वेरी पैरामीटर उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। ये थ्योरेटिकल वीडियो है, मैं आपको प्रैक्टिकल एक बना के दिखा दूंगा कैसे हमें मेन्यू अपलोड करते हैं, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वीडियो इसके बाद में लेके आऊँगा, ठीक है। ये सारा का सारा इसमें एपीआई हमारी मेन्यू एपीआई से रिलेटेड है, जिसमें हम रिट्रीव कर रहे हैं, मेन्यू को अपलोड कर रहे हैं, मेन्यू के आइटम को अपडेट कर रहे हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि कैसे आपका मेन्यू एपीआई का कैसे इसका पेलोड रहेगा रिक्वेस्ट बॉडी का, जिसमें हमारे पास आइटम्स रहेंगे, मॉडिफायर ग्रुप रहेंगे, कैटेगरीज कौन कौन सी हमारे पास मेन्यूज में क्या क्या है, ठीक है। और इसमें सर्विस अवेलेबिलिटी भी है कि कब से कब तक आपका स्टोर ओपन रहेगा, डे ऑफ द वीक, टाइम पीरियड क्या रहेगा, ये आपका मंडे टू संडे मेंशन है, देखो लाइक दैट। एंड देन नीचे चलते हैं, नीचे आपके पास रिपोर्टिंग एपीआई शूट है, आप इसको ले सकते हो रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि ये सारी जो एपीआई ओपन है, आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो टेस्टिंग स्टोर के साथ में विथ स्कोप। अगर आपके लिए प्रोडक्शन के लिए जाना है, देन फर्स्टली आपको करना पड़ेगा, पहले टेस्टिंग स्टोर के साथ सारी एपीआई टेस्ट करनी पड़ेगी, एंड देन प्रोडक्शन के लिए उनको मेल करना पड़ेगा कि यू आर डन ऑल द टेस्टिंग एपीआई process are completed like that, and now we need to go for the production, इस तरीके से। क्योंकि आपकी टेस्टिंग स्टोर की जितनी एपीआई सब टेस्ट हो चुकी हैं, एंड देन आप सेम एपीआई के साथ प्रोडक्शन को मूव होना चाहते हो, तो वो ऊपर ही टीम क्या करती है, आपके टेस्टिंग स्टोर को वेरीफाई करती है कि आपने सारी एपीआई को कॉल आउट किया या नहीं किया है। अगर वो सक्सेसफुली रीच आउट कर लेते कि हाँ ठीक है, आपने ऐसा जितनी भी एपीआई है सबको प्रॉपरली टेस्ट किया हुआ है, सबका स्टेटस 200 आ रहा है, देन वो इस वाले प्रोसेस को कंप्लीट समझती है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पे, सैंडबॉक्स एक्सेस एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट। इसके लिए हमें इसमें आपने अगर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट आपने बोला है, तो ये हमारी एक प्रॉपर वीडियो है, ये हमारी एपिसोड नंबर 2, दिस इज़ द प्रोडक्शन और टेस्टिंग स्टोर से रिलेटेड वीडियो है, जो हमारा इंट्रो वीडियो है, ये हमारा प्रैक्टिकल वीडियो है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ इसमें क्या है। इसमें आपको कुछ भी नीड नहीं पड़ेगी, आपको सिंपली एक टेस्टिंग स्टोर बनाना है। टेस्टिंग स्टोर के लिए जितने भी स्कोप्स होते हैं ना, ऑटोमेटिक अप्रूव होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे टेस्टिंग स्टोर है, यहाँ पे इनका उन्होंने मेंशन किया हुआ टेस्ट ऐप है टॉप पे, और ओऑथ ग्रांट टाइप ऑथराइजेशन कोड टेस्टिंग स्टोर के लिए वैलिड नहीं होती, इन्होंने मेंशन किया हुआ टोकन जनरेशन इज नॉट सपोर्टेड फॉर सैंडबॉक्स हब। अगर आप क्लाइंट क्रेडेंशियल के लिए जाते हो, क्लाइंट क्रेडेंशियल के लिए यहाँ पे सपोर्टेड रहती है, जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है, स्कोप ग्रांट कंप्लीटेड, ओके। तो आपको स्कोप अप्रूवल के लिए कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्टली टोकन क्रिएट करके अपनी एपीआई कॉल कर सकते हो। टोकन कैसे क्रिएट करना है मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, कैसे ओआर टोकन क्रिएट करते हैं, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप देखें तो मैंने यहाँ पे एपिसोड मेंशन किए हुए, ये हमारी वीडियो 1 है, 2, 3, 4, और हमारी सीरीज़ है हमारे चैनल पे ऊबर ईट इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरे क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस। इंटीग्रेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस ऐसे होता है, जब आप मैं ये पहले बता चुका हूँ, जब आप टेस्टिंग एप्लीकेशन की सारी एपीआई वेरीफाई कर लेते हो, सारी एपीआई टेस्ट कर लेते हो, आप सेटिस्फाई हो कि हाँ मेरी एपीआई सारी इंटीग्रेट हो चुकी हैं, प्रॉपरली डन है 200 स्टेटस के साथ में, देन आप ऊपर ही टीम को एक मेल कर सकते हो कि आप टेस्टिंग स्टोर के साथ में सारी टेस्ट एपीआई कॉल आउट कर चुके हो, एंड देन आप प्रोडक्शन के लिए मूव होना चाहते हो। देन क्या करेंगे, ऊबर ईट टीम आपकी एपीआई को वेरीफाई करेगी, जो जो आपने एपीआई कॉल की होगी, और अपने ब्लफी कोडर पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जितने भी एपीआई आपने कॉल की होगी, यहाँ पे उनकी लिस्ट आती है,
और जितनी भी API यहाँ पे है मेंशन, वो सबका स्टेटस चेक करती हैं वन बाय वन कि आपने कॉल की है या नहीं की है। अगर आपने API कॉल करके 200 स्टेटस उनको रिसीव होता है, इट मीन्स वो आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देते हैं। और जब भी आप कंप्लीट करते हो, वो उसका स्क्रीनशॉट आपसे मांगते हैं कि हाँ सक्सेसफुली आपने उन API को कॉल किया हुआ है। ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। और एक्सपेक्टेड अप्रूवल टाइम लगता है, मैक्सिमम टाइम लगता है उनको मोर देन स्कोप अप्रूवल के लिए लग जाता है 3 to 4 वीक। ये मैक्सिमम टाइम है अभी तक मैंने जितना देखा है, बट इनकी डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने कुछ अलग बताया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हम प्रोडक्शन के लिए काफ़ी जल्दी चले जाते हैं, बट इसमें टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि फुल POS इंटीग्रेशन 4 to 8 वीक, बट इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। स्कोप अप्रूवल के लिए आप टाइम ले सकते हो, और अगर आप उनसे रीच आउट करते हो मीटिंग के लिए तो 90% मैंने जितना देखा है कि वो कनेक्ट नहीं करते मीटिंग के लिए। आपको मेल के थ्रू ही कनेक्टिविटी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी ओवर एट टीम के साथ। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एनी डॉक्यूमेंटेशन और डेमो रिक्वायरमेंट नीड फॉर अप्रूवल। देखो, आपको कुछ भी देने की नीड नहीं है। जब आपकी API कॉल हो जाती है ना आपके एंड से टेस्टिंग स्टोर के साथ में, तो ऑटोमेटिक वो वेरीफाई करते हैं कि आपने कॉल आउट किया है या नहीं किया। स्क्रीनशॉट चेक करते हैं, लॉग्स में चेक करते हैं। अगर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हो टेस्टिंग के साथ में, टेस्टिंग स्टोर के साथ में, तो वो उसको अप्रूव कर देते हैं और इसकी नीड नहीं पड़ती। ओके, सो आई होप मैंने सॉरी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर दिया हो। और एक बार आप उन वीडियोस को रीच आउट कर लो, जिससे आपको और प्रॉपर क्लियर आइडिया मिल जाए कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ और डाउट होता है, सौम्य, अजित एंड अदर मेंबर्स, ठीक है, तो प्लीज़ रीच आउट इन माय वीडियोस एंड कमेंट ऑल्सो। अगर आपको और अगर कुछ अदर हेल्प की नीड है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, या थैंक यू, बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लफी कोडर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे कि हम स्टोर क्रिएट करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि कैसे हम टेस्टिंग स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, बट अभी तक हमने स्टोर कैसे क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो अभी हमने देखा ही नहीं, क्योंकि ओवरइट की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी उन्होंने बताया नहीं हुआ कि कैसे हम अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, बाकी सारी चीज़ें बताई हैं, बट स्टोर क्रिएशन का प्रोसेस नहीं है। तो आज मैं आपको वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे आप अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एंड देन API इम्प्लीमेंटेशन का काम स्टार्ट कर सकते हो। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, ताकि जो आपकी अपकमिंग न्यू वीडियोस हैं आप वो आपसे मिस आउट ना हो जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। इसके दो प्रोसेस हैं क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो डेवलपर डैशबोर्ड है आपको उसको ओपन कर लेना है, और एप्लीकेशन आईडी को और एप्लीकेशन नेम को इनको कॉपी करके रख लेना है। ठीक है, ये सेकंड मेथड में यूज़ होंगे, फर्स्ट मेथड में नहीं, बट मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली मर्चेंट डॉट ओवर ईट्स डॉट कॉम इस वेबसाइट पे आना है। मैं इसका URL आपको शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली चले जाना वहाँ पे। तो इस टाइप का आपको फॉर्म वहाँ पे विजिट होगा। ठीक है, आपको सिंपल यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, स्टोर का जो नेम होगा। ठीक है, मेरे स्टोर का नेम क्या था, मैंने स्टोर का नाम रखा था मे बी पिज़्ज़ा एंड दिल्ली। ठीक है, पिज़्ज़ा दिल्ली लिख दिया समथिंग। ईमेल आईडी मैंने अपनी पर्सनल दे दी। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो अपना, मैं फटाफट दे देता हूँ। जैसे कि कोई भी इस नंबर पे कॉल मत करना, रॉन्ग नंबर है। ओके, एंड हम चलते हैं अपने यहाँ पे। मैंने यहाँ पे फिल आउट किया हुआ, मैं समझाता हूँ अभी क्या है। ठीक है,
सो हम डाल देते हैं एड्रेस, कुछ भी डाल देते हैं, यूएस का डाल देते हैं। ओके, यूएस फेक एड्रेस, न्यूयॉर्क। ये लेते हैं 13 स्ट्रीट समथिंग ना, वो इजी रहेगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको चलते हैं अपने, सॉरी हम तो वहीं पे, यहाँ पे चलते हैं, पेस्ट कर देते हैं और इसको ले लेते हैं फर्स्ट वन को। ठीक है, ऑप्शनल है ये। स्टोर नेम ब्लफी पिज़्ज़ा स्टोर, ओ सॉरी यहाँ पे आपको अपना नेम डालना था, मैं अपना नेम डाल देता हूँ। ओके, एंड नीचे चलते हैं, स्टोर नेम ब्लफी पिज़्ज़ा स्टोर, ब्रांड नेम ब्लफ सेम डाल देते हैं, ब्लफी पिज़्ज़ा समथिंग, पिज़्ज़ा स्टोर कर देते हैं ब्रांड नेम, स्टोर नेम पिज़्ज़ा स्टोर सॉरी, एंड ब्रांड नेम ब्लफी पिज़्ज़ा स्टोर। बिजनेस टाइप क्या, रेस्टोरेंट है, मेरा रेस्टोरेंट है सपोज। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, ग्रोसरी, ओके, लिकर और बहुत सारे। यहाँ पे आप डाल सकते हो कि किस टाइप का आपको चाहिए। मैं यहाँ पे अदर कर देता हूँ। नंबर ऑफ लोकेशन, ये इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे लोकेशन डाल देता हूँ 2 से 5। उसके बाद बोल रहे हैं सोशल वेबसाइट का, अगर आपके पास कोई लिंक है आप वो शेयर कर सकते हो। मैं कुछ भी शेयर नहीं कर रहा। बाईसाइकिल पास आउट, ओके, सबमिट एंड स्टार्ट सेलिंग। यहाँ बोल रहा है स्टोर सीम्स फॉर दिस एड्रेस व एंटर इज इन द करेंट यू कंफर्म राइट टू कनेक्ट। ओके, कंफर्म कर देते हैं। ओके, जैसे आप इसको ऐसे फिल आउट करके सबमिट करते हो ना, आपको इस तरीके का मैसेज मिलता है। इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है उबर इट नीड टू कनेक्ट यू फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट अ फ़ोन कॉल और ईमेल 1 to 3 बिजनेस डेज। बट इनका कुछ आता नहीं है, ना ही कॉल आता है ना ही ईमेल आता है, आप बस वेट करते रह जाओगे। तो प्रेफर वे क्या है, फर्स्ट वन को स्किप करो, सेकंड वन पे आ जाओ, डायरेक्टली आप इन्हें मेल करो। मैंने ऑलरेडी मेल लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ईमेल आईडी है, मैं आपको बता देता हूँ क्या ईमेल आईडी है। कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी है ईट्स पार्टनर टेक सपोर्ट समथिंग @uber.com। आपको ये उठा लेना, इसे अपने 2 में डाल देना, सब्जेक्ट डाल देना रिक्वेस्ट टू क्रिएट टेस्ट स्टोर अकाउंट फॉर पीओएस इंटीग्रेशन, ये सब्जेक्ट डाल देना। उसका सिंपल इस टाइप का मैसेज लिख देना कि हाई टीम, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स आउट फॉर द आउटलाइन द रिक्वायरमेंट क्रिएट द टेस्ट स्टोर, प्लीज़ फाइंड द रिक्वेस्टेड डिटेल बिलो द टेबल फॉर्मेट। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि मैं पहले कुछ और डिस्कशन कर रहा था। ठीक है, ये बस मैंने बीच का पार्ट उठाया। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नेम डाल देना है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा, ब्लफी वन, ये एज इट इज़ होना चाहिए। सेकंड वन आपकी क्लाइंट आईडी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये देनी ज़रूरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे दे देना। यहाँ पे उसके बाद अपना स्टोर नेम, आपका स्टोर का नेम क्या रहेगा, मैंने वहाँ दिया था पिज़्ज़ा स्टोर, मैं दोबारा देता हूँ। ईमेल आईडी दे दिया आपने, अपने स्टोर की ईमेल एड्रेस दे दिया, सॉरी ईमेल एड्रेस दे दिया एंड एड्रेस दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये एक लास्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ़ टेस्ट अकाउंट क्रिएट। इसको आप कितने भी दे सकते हो, जैसे वहाँ पे भी ऑप्शन रहा था फॉर्म पे 1 2 5 10, तो मैंने यहाँ पे 2 दे दिए। ठीक है, और नीचे पूरा मेल लिख दिया है। इसका रिस्पॉन्स मुझे आ जाएगा, मे बी इसका टाइम एक्सपेक्टेशन 2 to 3 डेज़ होता है। इसका रिस्पॉन्स अगर उनको कुछ नीड होगी ना, अगर सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो एक ये मेल कर देंगे कि आपका स्टोर क्रिएट हो चुका है विद अदर इन्फॉर्मेशन। जैसे आज है 11 जनवरी 2026। ठीक है,
तो इसका मेल एक्सपेक्टेशन मेरे को है समथिंग 13 जनवरी तक। ठीक है, वेट कर लेते हैं। और उसके जैसे इसका रिस्पॉन्स आता है देन मैं आपको एक वीडियो दोबारा शेयर करूँगा टेस्ट स्टोर के साथ में। सेंड कर देते हैं। ठीक है, हमारा ईमेल सेंड हो गया। सो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, क्योंकि इसमें सिंपली कैसे स्टोर क्रिएट करते हैं ये इसका एक ही प्रोसेस है, आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा टेस्टिंग स्टोर के लिए। और कोई प्रोसेस है नहीं, क्योंकि जो उनके अदर प्रोसेस है वो वर्क नहीं करते हैं यहाँ पे। ये बस इन्होंने टेम्प्रेरी दिया हुआ है, बट इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मेक श्योर आपको कुछ भी उनसे कनेक्ट करना है तो आप उन्हें डायरेक्टली ईमेल करो। ओके, सो इस वीडियो में इतनी रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।